Hello dear students, welcome to the class today. Hope you all are doing fine. How are you all doing? I hope you all are doing fine. So as you know, we are carrying on with this chapter 9. It is the second last chapter of your syllabus. Here we are talking about the regional cultures, where we are talking about the cultural tradition of the different places in India. Got it? So for this cultural tradition, the different places in India, when we had started the chapter, at that time, what we had done, I had just made it to make you revise the topics that we have done till now. In this chapter, the topics that we are doing is something that is very new, something that is very recently. You're knowing it for the first time. That's why I thought that I should revise it again so that the concepts, some new words that are there should be clear to you. Got it, children? Now, in the last video, what we have done, we have talked about the regional and cultural traditions from Orissa. Okay, and in the previous last video where we had started the chapter, there we had talked about the Cheras, got it? The Cheras and the development of Malayalam. Culture may one of the very important things, one of the very important aspects that is considered to be as the baseline for all the customs and traditions. Culture may, the major role that is played is by the language. The language that is spoken makes it clear that what is your basic culture, which place you belong to, what are the customs and traditions that are, that are influencing you, how are the changes in the nearby world, all over the world, is affecting your real life. Got it? So all these things are a part of culture. That is what we have to understand, and that is what we have started here. हमने कहाँ की कहानी शुरू की थी? We had started the story from the region of Kerala. Got it? Now what happens, children? When you write Kerala, तो अभी क्या होता है? Many times in the place of E, students write A. तो फिर वो केरला नहीं हो जाएगा, फिर वो करेला हो जाएगा. Got it? So just for a funny side, children, just see that when you write the name of the, when you write the spellings, when you write the words, it should be very clear. Got it? So that is what I wanted to tell you. Now, what we have talked about is 9th century में एक जगह थी, कहानी की तरह समझो. Try to understand in the form of story. Got it? There was one place, Mahodaipuram. Mahodaipuram कहाँ था? It was in the southwestern part of Peninsula. Peninsula, you know, yeah. This region is called as the Peninsula region. Peninsula में महोदयपुरम नाम की जगह थी. तो वहां के लोग जो थे, the people who were there, they were speaking Malayalam. In the meantime, what's happened? That rulers, the यहाँ के जो rulers थे, the rulers were the, कौन थे? The Cheras. The Cheras were the rulers, and they had established, they had introduced नहीं, मतलब पहले से ही यहाँ के लोग मलयालम लैंग्वेज बोल रहे थे, but the development in the language, the development in Malayalam language, it was taken over by the Cheras, the rulers, the local rulers of this place. And what did they do? One of the earliest examples, सबसे पहला इन्होंने क्या किया? हमको इनके पास से हमको मिलता है lot of inscriptions are there. ठीक है? Please understand what are inscriptions. Inscriptions are those informations that has been written in the ancient times, and it is on some stone or some piece of land or some a copper plate, or on some what do you call it, pillars,
ठीक है, some pillar inscriptions are there. खंबा या pillar is खंबा, तो वो खंबे होते हैं, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है पहले के टाइम में. अभी have you ever thought about it कि why did the people do so? वहां पे क्यों लिखवाते थे? They wanted that the coming generations, आने वाली जो generations है, आने वाली जो पीढ़ी है, the future should know about the past. Many a times I have seen students saying, many a times I find children asking, मैम इतना हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? Why do we have to study history? क्या है बेटा? Until and unless you know about the past, आपको अगर अपना पास्ट नहीं पता होगा तो आप अपना प्रेजेंट कैसे सही करोगे? क्या होता है, पहले की चीजों को देखते हुए, पहले कहीं पे अगर some mistakes had happened, तो आने वाले टाइम में वो मिस्टेक्स ना हो. Those mistakes must not happen. That will make your life smooth and that will make your life comfortable. तो ये कंफर्टेबिलिटी के लिए हमको ये जानना जरूरी है that we are carrying forward the things in a very simple manner, in a very smooth manner. Got it? That was there. Cheras ने क्या किया? They have taken the Sanskritic traditions. What was this Sanskritic traditions? मतलब संस्कृत लैंग्वेज से बहुत सारी इंफॉर्मेशन इनको मिली. Malayalam language that is there, it has somewhere the base in the Sanskrit language. Got it? तो 14th century में क्या हुआ कि the temple theater, केरला में there is a system of temple theater. मतलब कि temple theater as the word itself signifies the meaning. Please try to understand. What do you mean by temple theater? मतलब कोई भी suppose there is some temple, मंदिर है कोई, तो उससे रिलेटेड जो कहानी है वो कहानी जो है एक्ट के फॉर्म में लोगों को बताई जाए. रामायण आपने देखा है, महाभारत देखा है. This was based on the previous written epics. पहले के जमाने में जो कहानियां लिखी गई हैं उस पे बेस करके इसको बनाया गया है. तो यहां पे क्या था? वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल थिएटर. जो थिएटर है, जो नाटक पेश कर रहे हैं, उसमें क्या है? द संस्कृत एपिक से स्टोरी ली गई. संस्कृत की जो पुरानी स्टोरीज थी उसमें से द स्टोरीज वेर टेकन एंड देन एनैक्टमेंट वाज मेड. गॉट इट? सो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वे. देन मलयालम में हमको क्या होता है? वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन मलयालम लैंग्वेज which is dated from 9th to 12th century. ठीक है, 9th century में Bahawalpuram was there. तो 9th to 12th century, lot of informations we have got from these regional cultures and from these regional texts. Got it? Regional मतलब जो कि केरला में ही बहुत फेमस था. It was very famous in the region of Kerala. We are talking about that. Got it, children? So, 14th century text में हमको ये पता चलता है कि एक टेक्स्ट लिखा गया था. One of the texts that was written. ठीक है? The name of the text you have to remember, my dear children. आपको ये टेक्स्ट का नाम याद रखना पड़ेगा. And the name of the text was, yes, you all know it very well, but still I am just telling you, it was Leela Tilakam. क्या था? Leela Tilakam. Okay, this was a very old text. बहुत पुरानी एक किताब है. इसमें क्या हमको मिलता है? We come to know about the grammar. We come to know about the poetry. एंड ये किस लैंग्वेज में? इट वॉज कंपोज्ड इन मणि प्रवलम. फिर से बता रही हूं, ठीक है? इट वॉज कंपोज्ड इन मणि प्रवलम. इसका ना, यू नो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. मणि, मणि मीन्स मणि, हीरा, यू नो, डायमंड इज मणि. तो मणि
एंड कोरल, ठीक है, डायमंड एंड कोरल। कोरल आई एक्सप्लेन यू चिल्ड्रन, सी के अंदर बहुत ही खूबसूरत, आई मीन इट इज बिकॉज ऑफ द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, उसके अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं उसका बहुत तरीके का आकार बन जाता है। सो द वेरियस art forms, the various forms that are made out of the deposits that are found inside the sea, that is called as coral. So diamond and coral को मिला के ये मनी प्रॉब्लम से, ये जो है इट इज लाइक अ मनी प्रॉब्लम, क्या है, लीला तिलकम, गॉट इट, नाम याद रखिएगा, लीला तिलकम एंड मनी प्रॉब्लम। ओके, 2 लैंग्वेजेस को जोड़ के ये यहां पे हमको ये टेक्स्ट मिलता है। 2 लैंग्वेजेस आर इन्वॉल्व इनटू इट, ठीक है। इसमें क्या था, डायमंड एंड कोरल। डायमंड किसको कहा गया है, डायमंड संस्कृत को कहा गया है, एंड कोरल इज द रीजनल लैंग्वेज, मतलब उस एरिया में जो भाषा बोली जाती थी उस भाषा को कोरल कहा गया है। तो 2 भाषाओं को मिला के ये टेक्स्ट हमको मिलता है, which is called as मनी प्रबलम। नाम है बुक का लीला तिलकम, and the basic language that is there is used is मनी प्रबलम, which is a combination of 2 languages, Sanskrit and the regional language that was spoken there. Got it? ये तो हमने पढ़ा था। This was the first topic that we had done, something that was very new for you, इसलिए मैंने सोचा कि इसको एक बार फिर से आपको मैं बता देती हूँ। I should explain it to you once again. The next thing that we had done was rules and religious traditions of, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, हम बातें आई एम सॉरी, रूलर्स, बहुत सारे जो पहले के जमाने के जो रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उनसे रिलेटेड ये मैटर है, द रूलर्स एंड द रिलीजियस ट्रेडिशंस। क्या रूलर्स के साथ भी धर्म जुड़ा हुआ था? इट वॉज ऑलवेज देयर माय डियर चिल्ड्रन। हमेशा जितने भी बड़े बड़े पुराने जमाने के जो रूलर्स हैं, पुराने जमाने के जो द पीपल हु आर देयर हु वेर रूलिंग सर्टेन टेरिटरीज, कुछ जगहों को जो रूल करते थे, उनके बारे में दिस इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट द रूलर्स वेर ऑल्सो सपोर्टिंग सर्टेन रीजनल कल्चर्स। जिस जगह के वो रूलर है वहां का अगर कोई चीज बहुत फेमस है, द किंग्स ऑल्सो यूज टू रेस्पेक्ट इट। कोई भी गॉड है, मान लो इट इज विष्णु और शिवा, जो सारे लोग जिनको वर्शिप कर रहे हैं, तो रूलर्स भी उनके लिए टेम्पल बनवाते थे, उनका वर्शिप में साथ देते थे। वर्शिप के लिए लाइक एनुअल फेस्टिवल इज टू बी देयर, कुछ मनी इज नीडेड, तो रूलर्स हमेशा देते थे। इससे क्या होता था, आई लेट यू नो, व्हेन द रूलर्स यूज्ड टू डोनेट लॉट ऑफ मनी, तो उनका क्या होता था, पीपल यूज्ड टू बहुत फील वेरी हैप्पी। जो लोग हैं, जो जिन्होंने उनको रूलर एक्सेप्ट किया हुआ है, उनको बहुत अच्छा लगता था, एंड दे ऑल्सो यूज टू सपोर्ट द किंग। अगर किंग को भी कोई सपोर्ट चाहिए तो वो हमेशा तैयार रहते थे। गॉट इट, कि अगर ये हमारे भगवान को इतना मान रहे हैं तो इनके लिए तो हम जान भी दे सकते हैं। यू नो, रिलीजन इज अ वेरी थिन, देयर इज अ वेरी थिन लाइन, वेरी थिन स्ट्रिंग, एंड पीपल आर वेरी मच इमोशनली अटैच टू द रिलीजन। धर्म के साथ लोगों का दिल जुड़ा होता है, तो उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं या उसको जो लोग मानते हैं, उसके साथ तो पीपल आर ऑलवेज देयर, हमेशा लोग उस चीज को सपोर्ट करते हैं। गॉट इट? तो ये था, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस में वी आर टॉकिंग अबाउट अ गॉड कॉल्ड एज जगन्नाथ, जगन्नाथ कल्ट। जगन्नाथ, अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे, आई होप यू ऑल नो अबाउट संधि विच्छेद, आपको पढ़ाया गया होगा, नहीं तो फिर 10th में आगे पढ़ेंगे। व्हेन यू डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स ना, तो इसके 2 मीनिंग आते हैं। एक तो जगन्नाथ, जो पूरे वर्ल्ड के जो गॉड है, जो जगत के नाथ हैं, दैट गॉड इज कॉल्ड एज जगन्नाथ।
Are you understanding? So एक तो जगन्नाथ है एंड जगन्नाथ कल्ट, ये हमने पहले तो केरला के बारे में पढ़ा. दिस इज वेरी फेमस इन उड़ीसा. Children, in the last video we have talked about this god and the culture. मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि we are just revising it because it is a very new thing which you should know. Jagannath is another name of God Vishnu. ठीक है, गॉड विष्णु का ये दूसरा नाम है जगन्नाथ. And very respected and very holy deity from the Odisha region. Okay, हमने पहले केरला के बारे में बात किया. तो इसमें क्या है, इनका टेम्पल है कहां पे? Yes, many of you can tell me the answer. His temple is situated in Puri, उड़ीसा में. This is जैसे ना I mean most famous temples अगर इंडिया में बात किया जाए तो जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में, उसका भी नाम लिया जाता है. इट इज दैट ब्यूटिफुली मेड, इतनी खूबसूरती से ये बना हुआ है. गॉट इट चिल्ड्रन? तो दैट इज व्हाट इज देयर. एंड हु हैज मेड इट? तो अगर आप, हमने कल बात किया था, the ruler who had made it was Anantavarman. Anantavarman. Got it? Anantavarman had made it. इन्होंने सोचा कि इनको एक सपना आया था where God is saying कि आप हमारा टेम्पल बनाइए तो आपका बहुत नाम होगा, सारे लोग आपको जानेंगे, आपकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज होगी. तो पहले के जो रूलर्स थे ना, उनको लगता था कि वो किसी भी तरह से पॉपुलर होना है. somehow we need to be popular. तो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कितनी बार क्या होता था, they used to carry on with such activities. इस तरह की चीजों को वो बहुत अच्छे से कर ले जाते थे. तो 1230 में क्या हुआ कि अनंग भीम III was there. अनंग भीम III, Anantavarman made a temple at Puri. बहुत बड़ा टेम्पल है ये. It's a very big temple. And the art and architecture in this temple, it is said, is one of the best in the world. Yes, children, I'm not talking in India, but in the world, ये जो temple बना हुआ है, people really appreciate it. Got it? So, यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी. I just wanted to tell you this thing. And Anantavarman has made it. And then एक 1230 में there was one ruler. 1230 में जो ruler थे, अनंग भीम III. इन्होंने क्या किया, ही सेड कि ही इज, उनका जो किंगडम है, उन्होंने ये बताया कि ही इज रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ ही इज लाइक अ असिस्टेंट टू द गॉड. उन्होंने कहा ये जो पुरी का जो टेम्पल है एंड गॉड लॉर्ड जगन्नाथ इज देयर, तो ही सेड कि आई एम रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड जगन्नाथ. जो जगत के नाथ है, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया है एज अ किंग, तो मैं उनका सेवक बन के आप लोगों की सेवा करूंगा. डोंट कंसिडर मी एज रूलर. सोचो लोग कितना इंप्रेस होंगे कि भगवान को ही रूलर मान लिया है. ही सेड डोंट रेस्पेक्ट मी, प्लीज रेस्पेक्ट द गॉड. आई एम द असिस्टेंट अपॉइंटेड बाय द गॉड. दिस इज व्हाट ही सेड. तो धीरे धीरे क्या हुआ कि दिस टेम्पल वॉज गेनिंग लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड its social and political matters also increased. Many rulers were there जिन्होंने कि उड़ीसा पे, many rulers attacked उड़ीसा, लेकिन हमेशा they used to respect this Lord जगन्नाथ. इस टेम्पल को किसी ने भी हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की. Nobody ever tried to pose a challenge to this temple. इस मंदिर के ऊपर सभी लोगों का बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट था. Lot of respect people had on this temple and they felt that ऐसा इसलिए था क्योंकि the rulers who had captured the temple, who had captured उड़ीसा, उसमें we have the Mughals, the Marathas,
the Mughals, Marathas, East India Company, got it? Everybody who had ruled on in Odisha, they all used to respect this temple a lot. किसी ने भी कभी भी इस टेम्पल को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की. पहले क्या होता था ना, रूलर्स कहीं पे भी दे यूज्ड टू अटैक, तो सबसे पहले क्या करते थे, वहां का टेम्पल तोड़ देते थे. बट ऑल दीज रूलर्स, all these people who once upon a time controlled Odisha, they never posed any harm to the temple. ये मैं बताना चाह रही हूं कि जो रीजनल कल्चर होता है, जो रीजनल ट्रेडिशंस आर देयर, दैट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड बाय द पीपल हु आर रूलिंग ओवर दैट प्लेस. ठीक है, अनंत वर्मन चले गए, अनंग भीमा भी हट गए, Marathas came, Mughals came, but all of them respected this temple. Culture. People can, लोग बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन कल्चर के साथ कोई भी खिलवाड़ कभी नहीं करता. Nobody tries to play with the culture. Got it? This is what I wanted to tell you. दो के बारे में हमने पढ़ा. पहला वाला क्या था? First we have read about the Malayalam language. First was that lot of inscriptions we have found in Kerala. Mahodayapuram नाम की जगह थी, वहां से. Second, we have read about Odisha, Jagannath cult, Lord Jagannath and his importance in Odisha. How the people respect the God and how much is their dedication towards the God. Got it? अब तीसरा हम क्या पढ़ेंगे कल्चर में, because we are right now talking about the cultures of different places. अलग अलग जगहों के कल्चर के बारे में जब हम बात कर रहे हैं. So now the next culture we are talking about, that was developed by the Rajputs. Please remember, it was developed by the Rajputs. क्या था इनका? राजपूत्स की कहानी हमेशा अलग है. इनको बहुत ज्यादा, they are considered to be the bravest of all. Traditions of heroism. हीरो क्या करता है? हीरो सबको मार धाड़ के एकदम हमेशा टॉप पे रहता है, कोई भी हीरो के सामने टिक नहीं सकता है. हीरो इज लाइक हीरो. गॉट इट? तो दैट वाज विद द राजपूत किंग्स, राजपूत रूलर्स. All these rulers who were there, very brave people, extremely brave. Okay? And 19th century में यहाँ पे most of the present, आज का जो राजस्थान है, it was called as Rajputana by the British. ठीक है? 19th century, present day Rajasthan, present day Rajasthan was called as Rajputana. Got it? क्या था? Present day Rajasthan was called as Rajputana. Rajputana कौन इनको बुलाता था? Rajputana by British. You know, Britishers were also, बहुत ज्यादा, they used to respect the rulers of Rajasthan a lot. उनका ये कहना था कि जितने brave all these Rajputana rulers are, उतना brave उन्होंने कभी भी किसी को भी नहीं देखा है. ठीक है? तो they used to respect them a lot. And mainly इसको राजपुताना कहते थे because this area means Rajasthan. Rajasthan was inhabited. मतलब कौन रहता था यहाँ पे? Inhabited by Rajputs. जो यहाँ रहते थे, the people who used to live here, they were called as the Rajput. अगर हिंदी आपने पढ़ा होगा तो पूत का मतलब होता है सन.
ठीक है. सो राजपूत मीन्स जो राजा के बेटे हैं, दे वर कॉल्ड एज द राजपूत. एंड ये है, देयर आर सेवरल ग्रुप्स वेर देयर, बहुत सारे और भी ग्रुप्स थे जिन्होंने कि अपने आप को राजपूत कहा. आसपास के एरिया के भी लोग थे, लेकिन ब्रिटिशर्स मेजरली यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको ही वो राजपूत्स का दर्जा देते थे. दे यूज टू कॉल देम एज राजपूत्स. एंड देयर आर सेवरल पीपल. राजपूत्स के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो राजस्थान में रहते हैं. तो Rajputs are contributing a lot to the culture of Rajasthan. Rajputs have contributed a lot to the culture of Rajasthan. बहुत कुछ किया है इन्होंने. The people in Rajasthan are very proud of all these Rajputs. जितने भी इनके रूलर हैं, इनको बहुत ज्यादा इज्जत मिली है. एंड यहाँ का जो कल्चरल ट्रेडिशन था, द कल्चर दैट वाज हियर प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान, लैंग्वेज, ड्रेसेस, फूड एंड ऑल, इट इज लिंक्ड विद द आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ रूलर्स. जैसा रूलर्स यहाँ पे चाहते थे वैसा ही लोग करते थे. मीन्स देखो, आप उसी की बात मानोगे जिसको आप रेस्पेक्ट करते. द पर्सन हुम यू डू नॉट रेस्पेक्ट और द पर्सन हुम यू डू नॉट लाइक, उसकी बातें आप नहीं मान सकते. उसका कहा हुआ कुछ भी काम आप नहीं कर सकते. Isn't it? Yes, dear children, it happens. Okay, so present day, most of the present day places that was ruled by the Rajput families, Prithviraj was one such ruler. I told you now that people respected the rulers a lot. ठीक है, local people respected the rulers, and one of the greatest ruler was, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान. यस, पृथ्वीराज, सॉरी, हाँ आई नहीं, पृथ्वीराज चौहान. यस, बिकॉज यू हैव रेड अबाउट हिम, इनके बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है. ये रूलर्स जो थे, जो बहुत बहादुर होते थे, उनकी ये बहुत रेस्पेक्ट करते थे. दे यूज टू रेस्पेक्ट देम अ लॉट. एंड बैटल फील्ड में जो लोग अपनी जान देते थे, उनके लिए ये कुछ भी करते थे. गॉट इट? राजपूत की कहानी थोड़ा सा ऐसे करते हैं, डिटेल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट वीडियो. गॉट इट चिल्ड्रन? ओके, आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ, ओरिजिनल पिक्चर ऑफ पृथ्वीराज चौहान. यस, लेट मी शो यू. गॉट इट चिल्ड्रन? चलो देखते हैं. So students, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में कल द लास्ट वीडियो ऑल्सो आई हैड शोन यू. ये एक फिर से दिखा रही हूँ. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग्स. ठीक है, बलभद्र, सुभद्रा एंड जगन्नाथ पाम लीफ पे बना हुआ है. ये सोचो, पाम लीफ पे ये इस तरह की चित्रकारी करना, एंड इतना मिनिएचर, दिस इज कॉल्ड एज मिनिएचर पेंटिंग. कितनी छोटी छोटी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं. जस्ट चेक दैट. ओके, फिर मैंने आपको ये देखो, दिस टेम्पल ऑफ पुरी का ये जो टेम्पल है, इसकी पिक्चर आपको मैंने बताया था. एक चीज़ आई वांटेड टू गिव यू अ होमवर्क, देखना अगर कर पाओ तो, एंड दैट इज़ कि फाइंड आउट मोर इंफॉर्मेशंस अबाउट द पुरी टेम्पल एट जगन्नाथ. ठीक है, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी. आई एम टेलिंग उल्टा बोल रही थी मैं. नाउ व्हाट हैपेंड, और इन्फॉर्मेशन, जस्ट लुक. ये देखो कारीगरी कितनी खूबसूरती से ये बनाया गया है. आई जस्ट वांटेड टू शो यू दिस, कि एक एक चीज़ मंदिर की जो है ना, इट हैज़ बीन सो इंट्रिकेटली कार्व्ड, इंट्रिकेटली. और यहाँ छोटा दिख रहा है, अदरवाइज इट्स ह्यूज. ह्यूज मीन्स ह्यूज, काफ़ी बड़ा है ये. गॉट इट चिल्ड्रन? तो
just wanted to show you this. And then Rajputs में I told you that I'll be showing you the picture of पृथ्वीराज चौहान. ये पता है पहले के जो राजा महाराजा होते थे ना, they were people who very much love to get their portrait made. पहले पिक्चर क्लिक नहीं होती थी ना, तो वो अपनी तस्वीरें बनवाते थे. तो ये जो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तस्वीर बनवाई है, ये वही तस्वीर का एक जस्ट वन पार्ट इज देयर. गॉट इट. तो जस्ट दिस आई वांटेड टू शो यू. ये आप लोगों ने देख लिया है. बाकी राजपूत के बारे में वी आर टॉकिंग. आई एम सॉरी. We will be continuing this in the next class, children. Till then, thank you so much and all the best to you.